Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher, Ma'am Shaida. Today we'll start chapter number 5, Physical State of Matter of your chemistry book, grade 9. The topic which we have selected today for lesson is laws related to gases. This topic is mentioned on pages 78 to 83 in your textbook. Now, first introduction. There are basically two laws which are related to gases. First one is Boyle's law and the second one is Charles' law. And in this lesson, we also do the numericals based on the Boyle's and Charles' law. Along with, we also know about absolute temperature scale, which is the standard temperature scale, and it is normally used in the Kelvin scale, which is mentioned here. Along with it, we also know about the Celsius scale and some experimental verification which are based on Boyle's law as well as Charles' law. So this is our short introduction. So before starting today's lesson, I am going to give you first detail of the Boyle's law. First law related to gases is Boyle's law. Now here is the brief introduction about the scientist who was first discovered this law. So heading 1, Introduction. In 1662, Robert Boyle studied the relationship between the volume and pressure of a gas at same temperature. सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल नामी जो साइंसदान थे, इन्होंने 1662 में गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक ताल्लुक ज़ाहिर किया और ये ताल्लुक उन्होंने यकसा टेम्परेचर पर बयान किया. Now what is the statement about this law? He stated as the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. उनके ख्याल के मुताबिक कि अगर किसी भी गैस के दिए गए मास के वॉल्यूम को उसके प्रेशर के लिहाज से देखा जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर टेम्परेचर को यकसा यानी कांस्टेंट या सेम रखा जाए. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इट कैन बी क्लियर टू यू इन एक्सप्लेनेशन. सो द नेक्स्ट हेडिंग, एक्सप्लेनेशन. Volume V of a given mass of a gas decreases with the increase of pressure P and vice versa. स्टेटमेंट के बारे में अगर वाज़े किया जाए तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये बात क्लियर हो जाती है कि वॉल्यूम क्या है? गैस का जगह घेरने का की वो कैपेसिटी जिसमें वो अपने एक ख़ास एरिया या ख़ास मकाम पर रहते हुए अपने अतराफ़ की जगहों को ऑक्यूपाई करती है. इसी तरीके से अगर बात करें तो हमने अगर प्रेशर को बढ़ाना है, दबाव अगर गैस पर बढ़ाना है तो उसके साथ साथ उस दी गई मास की हामिल गैस का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा. कहने का मकसद क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? हमने इस पॉइंट को समझना है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? यानी ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान मेंटेन कर रहे हैं और इस प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमारा ये रिलेशनशिप है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा. तो ये पूरी स्टेटमेंट इस चीज़ की वजाहत करती है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू अल्टीमेटली कम हो जाएगी. Now the next heading is mathematical representation of Boyle's law. Mathematically, it can be written as volume is inversely proportional to pressure, or symbolically you can write V is inversely proportional to 1 over P, where V is volume and P is pressure. Another thing which you can write for your equation by writing V is equals to, by adding the constant temperature here, K over P, where K is proportionality constant and it is the constant temperature. You can also write this equation by merging all these things together, that is by keeping or separating
the variables on one side and constant on the other side. So your equation will become Vp is equals to Vp are variables and K on the other side, which is a constant. So K is constant. The value of K is same for the same amount of gas which is provided or given. Therefore, Boyle's law can also be stated as the product, according to mathematical representation, I am giving another statement of Boyle's law. So product of pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant. And when it is constant? At a constant temperature. So this relationship now becomes the product of pressure and volume of a given mass of a gas which is constant at constant temperature. And what is the meaning of here product? Product means multiply, because V is multiplying with P. Here you can see. Another important thing about the mathematical expression or equation is if P1 V1, by taking initial pressure and initial volume and separating the constant on one side, you will get next equation for the initial conditions. Then for the final condition, your equation will become P2 V2 is equals to K, where K again constant. Clear? Now what is P1? P1 is initial pressure, V1 initial volume, P2 final pressure, V2 final volume. So you can also write this equation in terms of wording. That is, P1 means initial. Initial means starting. Starting pressure. Initial pressure. What is V1? What is V1? Initial volume. What is P2? It is final pressure. And what is V2? It is final, that is the second volume. Now I am going to derive the final equation for the Boyle's law. So as we know that P1 V1 is equals to K and P2 V2 is equals to K. So what are we going to do with these two equations, with the initial conditions and the final conditions with constant temperature? As both equations have same constant. Which constants? K. Both equations, number 1 and number 2. These are two equations in front of you. Clear? So one equation and the second equation both have the same constant, and this same constant, what is this same constant? It is K. So what are we going to do with this constant, and what about those variables like P1, P2, V2, V1? Both equations have same constant, therefore their variables are also equal to each other. So this is the rule which we are going to apply here. So what are P1 and V1, or P1, P2, V1, V2? These are variables. Why are they all variables? Because they are changing according to the circumstances. Variables are those things which can change, which will not remain same. Clear? So what is your final equation for Boyle's law? It is P1 V1 is equals to P2 V2. So by this equation you have to establish the relationship between pressure and volume of a given gas.
or given mass of a gas. अब हम बॉयल्स लॉ को एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से समझने की कोशिश करेंगे, यानी एक तजुर्बा करेंगे। एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी अब हमारी आ रही है जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि क्या वाकई ऐसा है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें अगर एक चीज़ को बढ़ाया जाए तो दूसरी कम होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम देख लीजिए कि हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और सिलेंडर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, हमने एक पिस्टन रखा हुआ है। तो पिस्टन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज कीजिए कि ये पिस्टन है, ठीक है। इसको लेबल भी आप कर सकते हैं पिस्टन, और ये आपका सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, ये गैस का सिलेंडर है, तो ये समझे कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें हमने गैस ले ली है। अब हमने जब पहले स्टेप में जो प्रेशर इस पर एक्सर्ट किया है, यानी प्रेशर हमने रखा है, वो कितना है, अप्रॉक्सीमेट हम प्रेशर इस पर अप्लाई करेंगे 2 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना वॉल्यूम जो है वो गैस शो कर रही है। तो ये सारा जो एरिया है ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से फिर हम एक और फिगर बिल्कुल इसी तरीके के ड्रॉ कर लेंगे कि अब हमने वही सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर पे प्रेशर अब हमने यहाँ नहीं रखा, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज करने से अब वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले प्रेशर थोड़ा सा कम रखा था 2 एटमॉस्फेयर पे, अब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया। और कितना बढ़ाया देखिएगा, ये हमारा P1 V1 हो गया, अब P2 V2। P2 अब हमारा क्या होगा कि हमने तकरीबन फर्ज कीजिए कि ये प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, और अब हमारे वॉल्यूम पर उस लिहाज से तब्दीली आएगी कि अब क्या तब्दीली नज़र आ रही है आपको कि पहले देखें वॉल्यूम ज़्यादा था, अब गैस के वॉल्यूम में थोड़ी सी आपने तब्दीली देखी कि ये कम हो रहा है। तो कितना कम हुआ, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी 1 से कम होकर 0.5 डेसीमीटर क्यूब रह गई है। उसी सिलेंडर को हम दोबारा यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं टू प्रूव हमारा कि अब मज़ीद अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ने से हमारे वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो P3 और हमारा नेक्स्ट हो जाएगा V3। यहाँ पर हमने गैस सिलेंडर ड्रॉ करने के बाद अब प्रेशर हम पहले हमारा यहाँ था, अब मज़ीद इसको थोड़ा सा लोअर डाउन करते हैं, बिल्कुल यहाँ ले आते हैं पिस्टन को, और अब हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मज़ीद कंप्रेस होते चले जा रहे हैं, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि इनका वॉल्यूम कम हो रहा है। अब हमने प्रेशर कितना रखा है, हमने प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, यानी 6 एटमॉस्फेयर, और 6 एटमॉस्फेयर पे हमारा जो वॉल्यूम जो है वो रह गया है वो तकरीबन और मज़ीद डिक्रीज़ हो गया है, और ये वॉल्यूम हमारा तकरीबन बन गया है 0.3 या 0.33 अकॉर्डिंग टू बुक अगर आप जाएं तो डेसीमीटर क्यूब। अब हमारी जो लास्ट फिगर होगी जिससे हम फाइनली इसको प्रूव करते हैं कि वही सिलेंडर आप दोबारा ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि मैं तो अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अब जब सिलेंडर आप ड्रॉ करेंगे दोबारा से तो कोशिश कीजिएगा कि अब जो प्रेशर आपने पिस्टन से एक्सर्ट करना है वो उस लेवल से भी नीचे होना चाहिए, यानी इतना दबाव हो जाए कि अब हमारी जो वैल्यू P4 होगी वो उससे भी इंक्रीज होके 8 एटमॉस्फेयर हो जाएगी, यानी प्रेशर मज़ीद बढ़ने पर वॉल्यूम यानी आपका 4th वॉल्यूम भी चेंज होगा, एंड इट विल बिकम ओनली और रिमेन ओनली 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब हम P1 V1 P2 V2 जो हमारा एक्चुअल हमारी जो इक्वेशन बन रही थी P1 V1 वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएंगे। जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P की वैल्यू P1 पुट की तो हमारा हो गया 2 एटमॉस्फेयर, मल्टीप्लाई हमें करना है V1 से, सो इट बिकम्स 1 डेसीमीटर क्यूब, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, और एटमॉस्फेयर और डेसीमीटर क्यूब भी आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब, यानी दोनों रिलेशनशिप हमने वॉल्यूम की और साथ साथ प्रेशर की लिख दी। अब हमने सेकेंड वैल्यू अपनी ये वाली कैलकुलेट करनी है, पहले हम कर चुके हैं। तो सेकेंड वैल्यू इज़ नाउ P2 V2, वैल्यू पुट करेंगे P2 4 एटमॉस्फेयर
multiply V2 0.5 decimeter cube. So the final answer after multiplying 4 by 0.5, the result आपका यही आएगा 2 atmosphere. आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से. Then move on to the next third value P3. V3 is equals to, क्या है वैल्यू P3 की? 6 atmosphere. मल्टीप्लाई करेंगे इसको वॉल्यूम से 0.33 डेसीमीटर क्यूब. क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? अगेन 2 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब. और फिर हमारी जो लास्ट वैल्यू बचेगी जिसको हम इंडिकेट कर लेंगे, स्पेस चूँकि थोड़ा अवेलेबल नहीं है तो चलिए हम यहाँ बता देते हैं. P4 मल्टीप्लाई बाय V4 हम करने जा रहे हैं. तो P4 मल्टीप्लाई बाय V4 हम कैसे करेंगे कि 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, और ये रिजल्ट भी हमारे पास वही आएगा जो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का आया था, दैट इज़ 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब. सो ये फाइनल रिजल्ट इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वॉल्यूम का और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशनशिप है. अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट एग्जांपल यानी न्यूमेरिकल, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 80 पर दी गई है. आपने वहाँ से देखकर बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करनी है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जांपल 5.1. अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल आपकी क्या है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो हम एक डेटा या अपनी एक इंफॉर्मेशन सेट कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो व्हाट इज़ डेटा जो हमें गिवन है. सो व्हाट इज़ वॉल्यूम हेयर. एक आपको फर्स्ट वॉल्यूम दिया होगा और वॉल्यूम आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय मीन्स ऑफ इट्स यूनिट. सो गैस विद वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर हैज़ अ प्रेशर ऑफ, तो ये हमारा पहला प्रेशर आ गया P1 इज इक्वल्स टू 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. नाउ इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, अगर प्रेशर को यानी दूसरा प्रेशर आ गया कि अगर कम कर दिया जाए अप टू 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. नाउ क्या यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम. इसका मतलब है V1 तो दिया हुआ है, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि V2 यानी न्यू या फाइनल वॉल्यूम क्या होगा. सो दिस इज बिकम द क्वेश्चन मार्क दैट इज रिक्वायर्ड. तो आप उसके लिए हेडिंग दे देंगे रिक्वायर्ड, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपने मालूम करना है. Now next thing will be your solution, or you can also write the calculation. It's up to you कि आप कौन सी heading देना चाहें. So next heading will be calculation. कैलकुलेशन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी कि हमने क्या करना होगा इसके लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. P1 V1 is equals to P2 V2, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 3 वैल्यूज जो है वो गिवन है सिवाय एक वैल्यू के जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, एंड दैट इज V2. अब बहुत ही हमने ट्रिक से काम ये करना है कि हमने V2 को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है. क्यों? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमें V2 फाइंड आउट करना है और रिमेनिंग वैल्यूज जिनकी जो भी आपकी क्वांटिटीज गिवन है वो आप अपनी राइट साइड पर ले आएंगे. तो सबसे पहले P जब आप इसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पूरी वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी. तो ये बन गया P1 V1 और यहाँ पर P2 के साथ चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा था लिहाजा P2 अब P1 V1 के साथ डिवाइड हो जाएगा. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज विच आर गिवन इन द डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल P1 क्या था अगर आपको याद हो तो ये था ये हमने वैल्यू लिखनी है पहले 650, क्योंकि वो तो रिड्यूस फॉर्म में आप बाद में लिखेंगे. एंड V1 आपके पास था 350 डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू हमारे पास थी 325. सो इट बिकम्स मल्टीप्लाई करेंगे पहले 650 को 350 से, जो वैल्यू आएगी उसको 325 से आपने डिवाइड करना है एंड योर आंसर विल बी 700
centimeter cube. Why centimeter cube? Because we are finding out volume and the unit of volume is centimeter cube. So the volume of gas is doubled by reducing its pressure to half. अब चूंकि वैल्यू हमारे पास क्या है कि हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ये बताना है कि व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम. तो हमारा न्यू वॉल्यूम क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा और जैसे जैसे प्रेशर को कम करते चले जाएंगे वॉल्यूम भी उस लिहाज से बढ़ता चला जाएगा. तो दोनों वैल्यूज यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो फाइनली इट इज प्रूव्ड. ये हमने साबित कर लिया. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो कि अब हमारे पास बुक में मौजूद है 5.2 ऑन पेज 80. ये आप फॉलो करेंगे यहाँ से. क्वेश्चन इज 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस. तो पहले आपके पास क्या आ गया डेटा. अगर डेटा आप बनाएं तो पहला डेटा आपके पास आ रहा है V1 वॉल्यूम का. 785 सेंटीमीटर क्यूब आपकी क्या है गैस का पहला वॉल्यूम. उसके बाद आपने क्या करना है कि 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस वाज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ. प्रेशर कितना दिया गया है P1 600. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपने जो है वो सारा अपना डेटा तैयार करना है क्योंकि इसी से आपको जो है वो पता चलेगा कि आपका जो फाइंड आउट करना या रिक्वायर्ड है वो क्या है. सो 600 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर पर आपका वॉल्यूम जो है गैस का 785 सेंटीमीटर क्यूब है. If volume is reduced to 350 centimeter cube, what will be the pressure? This is the question. So if the volume is reduced, इसका मतलब इन्होंने कहा कि वॉल्यूम अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो इस दफ़ा V2 की वैल्यू आपको गिवन है एंड दैट इज V2 इज इक्वल्स टू 350 सेंटीमीटर क्यूब. द यूनिट्स आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है और मिलीमीटर मर्करी जो है वो प्रेशर के लिए यूज होते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द प्रेशर. अब हमने जाहिर बात है P1 V1 P2 V2 के पूरा हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमें पता चल गया कि जब हमें ये पहली तीन वैल्यूज गिवन है तो इसका मतलब है कौन सी वैल्यू अननोन है. P2 हमारे पास मालूम हमें नहीं है. सो इट इज required. So your next heading for this numerical is required. You have to follow the same headings for the next numerical given in exercise. Now by applying again the Boyle's equation हम क्या करेंगे हम अपनी calculation start करेंगे and how you will start the calculation again by using that equation of Boyle's law which is P1 V1 is equals to P2 V2. इस इक्वेशन को सामने रखते हुए आपने वैल्यूज सिंपली इसमें पुट करनी है लेकिन इस दफ़ा आपने V2 फाइंड आउट नहीं करना. आपने क्या फाइंड आउट करना है आपने P2 फाइंड आउट करना है. सो योर इक्वेशन विल बिकम P2 इज इक्वल्स टू यानी आप P2 यहाँ ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज आपकी कहाँ चली जाएंगी ऑन योर राइट हैंड साइड. एंड व्हाट हैपन्स टू V2 क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा था नाउ इट विल बिकम डिवाइड. As we know that Boyle's law equation is P1 V1 is equals to P2 V2. So we have to find out P2. So equation becomes हमारी क्या बन गई हमारी P2 is equals to P1 V1 और P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है V2 से तो यहाँ पर वैल्यू V2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा. Now पुटिंग द वैल्यूज़. अब हमने जो डेटा अपना लिखा हुआ था उसको हमने देखते हुए इन तमाम वैल्यूज़ को में जो वैल्यूज़ एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको पुट कर देना है और इससे हमें B2 का जो आंसर है वो मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 हमारे पास क्या था 785 मल्टीप्लाई व्हाट इज़ V1 इट इज़ 600 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और हमने इसको डिवाइड किया V2 से दैट इज़ 350. तो हमारे पास जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू सामने आती है इट इज़ 1345.7 millimeter of mercury. So these are the units of pressure.
सो P2 वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी अब क्या बन जाएगी, 1345.7 डिवाइडेड बाय 760। हम 760 से इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली 760 इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि जिसके ऊपर आपने तमाम अपने वैल्यूज़ को एडजस्ट करना होता है, और इस एक स्टैंडर्ड वैल्यू को सामने रख के ही आपको पता चलता है कि आपका आंसर सही है या गलत। सो डिवाइड करने पे अब आपकी वैल्यू आ रही है 1.77 atmosphere. So this is your answer for pressure or second pressure or final pressure. So this pressure is increased by decreasing volume. ये finally हमें मज़ीद प्रूव करता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, और अगर इसका वाइस वर्सा आप देखें तो क्या होगा कि प्रेशर को कम करने पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। Now before starting the next law, that is Charles' law, I want to explain the concept of absolute temperature scale. So what is absolute temperature scale? First, introduction. Lord Kelvin first of all introduced this scale, which is also called Kelvin scale. This scale of temperature starts from 0 Kelvin or minus 273 degree Celsius, which is given the name of absolute zero. Now, what is absolute zero? It is the temperature at which an ideal gas would have zero volume. What is the meaning of this? कि absolute temperature scale सबसे पहले लॉर्ड कैल्विन नामी एक साइंटिस्ट ने ईजाद किया, जिसको उन्होंने कैल्विन स्केल का भी नाम दिया। इस स्केल पर उन्होंने जो टेम्परेचर का रेंज रखा वो 0 केल्विन से शुरू होता है, और ये 0 केल्विन सेल्सियस स्केल में -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर हैं। जैसा कि आपको इस स्केल से जाहिर हो रहा है, फर्स्ट स्केल जो कि आपके सामने यहाँ मौजूद है, दिस इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल। इसे सेल्सियस स्केल कहा जाता है। व्हाइल ऑन द अदर साइड यू हैव केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, जैसा कि ये वैल्यू आपको इंडिकेट कर रही है कि जब आप केल्विन स्केल पर जाते हैं तो 0 केल्विन, दिस टेम्परेचर इज इन टर्न इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉर्मली एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर आकर गैस का किसी भी मैटर की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे गैस के हवाले से, तो आप देखेंगे कि इनके मॉलिक्यूल्स की जो हरकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो 0 वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि इस टेम्परेचर पर आकर वॉल्यूम बिल्कुल 0 हो गया है, लिहाजा इसको आपने 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड से रिजेंबल करना है। The next important part about it कि आप ध्यान से अगर दोनों स्केल्स को देखें तो both scales have equal degrees range. Therefore, when 0 Kelvin equals to -273 degrees Celsius, then 273 Kelvin will be equal to 0 degrees Celsius. तो ये बहुत ही एक मुनफरिद किस्म का आपके सामने एक रिलेशनशिप आ रहा है, एक टेम्परेचर जो है वो इक्वालिटी आ रही है कि जब केल्विन स्केल पे आप देख रहे हैं कि 0 केल्विन है और सेल्सियस पे देखते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस है, तो यही वैल्यू आपको बिल्कुल टॉप ऑफ स्केल रिपीट होती हुई नज़र आ रही है कि अगर केल्विन में जाएं तो वो 273 केल्विन है, लेकिन इन टर्न आप सेल्सियस पे आएँ तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर भी और यहाँ पर केल्विन स्केल के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग regarding the absolute temperature scale is the conversion of Kelvin, first of all Kelvin temperature to the Celsius scale, Celsius temperature, and vice versa, which is carried out as follows, which is given in front of you in the form of 2 equations. So this first equation indicates that how you will convert
if the value of degree Celsius or centigrade is given to you, how you will convert this value, that is degree Celsius, into Kelvin. So for this purpose you need to follow this formula. K, here T is temperature. Be careful, wherever the T is written, T means temperature. So K, Kelvin, is equals to T, temperature, degrees Celsius, plus 273. In the similar manner, another formula indicates if you want to know about and the value of K is given to you and you know about K आपकी value degree Celsius में क्या होगी, so you have to apply the second formula. Degree Celsius is equals to Kelvin minus 273. Only the difference which we have to find between these two formula is about क्या है आपका, कि अगर आपने केल्विन टेम्परेचर पे अपना कोई भी स्केल यानी आपने केल्विन टेम्परेचर पे मालूम करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपने क्या लगाना है, डिग्री सेल्सियस में प्लस करना है 273 और ये वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस की गिवन होगी। और अगर आपने डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है तो आपने, इसका मतलब है कि केल्विन आपको गिवन होगा, आपने उस केल्विन टेम्परेचर जो गिवन है आपके क्वेश्चन में उसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 273 को। तो ये आपने जो बेसिक जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो एक वैल्यूज़ हैं या इनके एक बिल्कुल आपके पास जो रूल्स हैं वो आप अप्लाई करते हुए इन दो फार्मूलाज को कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द की पॉइंट ऑफ योर टॉपिक। Second law related to gases is Charles' law. So, brief introduction about the Charles' law first. The relationship between volume and temperature, keeping the pressure constant, was also studied. So, French scientist J. Charles in 1787 presented this law, which indicates normally about the relationship between the volume and temperature at same pressure. Now this time pressure was kept constant by Charles. क्या है ये रिलेशनशिप, कैसा है और किसके दरमियान है? सबसे पहले जे चार्ल्स ने 1787 में एक ताल्लुक जो है वो गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान मेंटेन किया या बताया, और इसके लिए उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट यानी सेम रखा, जबकि बॉयल्स ने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ताल्लुक को जाहिर किया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि आपने यहाँ नोट करना है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेटमेंट। चार्ल्स स्टेटेड एज he stated as the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at a constant pressure. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें जो सेकंड डिफरेंस बॉयल्स और चार्ल्स में नज़र आता है वो ये है कि उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कट की जो टर्म है वो यूज़ की, जिसके अकॉर्डिंग ये बात यहाँ पर इस तरह से बयान की जा रही है कि अगर एक मुस्तकिल या एक यकसा प्रेशर पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो किसी भी दी गई मास की हामिल जो आपकी गैस है या वज़न की हामिल जो गैस है उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम का बढ़ना, ये है चार्ल्स लॉ की मेन स्टेटमेंट जिस पर आपने फोकस करना है। और ये कब होगा, कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी? जब ये आपके सामने रिलेशनशिप जाहिर होगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर के कांस्टेंट होना यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज explanation. So give heading explanation. When pressure P is constant, the volume V is directly or simply you can also say the proportional to absolute temperature, which is T. Now what is this absolute temperature? It is absolute zero actually, and it is that temperature at which the gas would have zero volume, as I told you in my previous point. So here I think it will be clear to you कि जब प्रेशर को सेम रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, उसमें तब्दीली ना की जाए, तो किसी भी मास की हामिल जो आपकी गैस होती है वो उसका वॉल्यूम आपके टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी उस लिहाज से कम होता चला जाएगा। सो दिस रिलेशनशिप ऑफ चार्ल्स लॉ in between
your first of all volume and temperature is basically given by name directly proportional. So I think the word directly proportional will also be clear to you. Now next heading is mathematical representation of Charles' law. According to this, we will apply the statement of the Charles' law that we have two relationship between volume and temperature. So volume is directly proportional to temperature, and this indicates that if temperature increases, volume will also be increased. Symbolically, we can also write volume V directly proportional to temperature T. Our next relationship can also be written by adding constant pressure in it. So V is equals to K T, or by keeping or separating the constant on one side and the variable on other side. So V यहाँ आके आप क्या कर देंगे, V K के साथ यहाँ पर T जो है वो K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके T क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और is equals to K. So this will become the next equation. Now here K is proportionality constant, and this proportionality constant is actually pressure, which is kept constant in the Charles' law. Now, if temperature of the gas is increased, its volume also increases. This relationship indicates that it is directly proportional. So when temperature is changed from T1 to T2, and again you can say the volume is changed from V1 to V2, then the mathematical form of Charles' law will become V1 over T1, where is equals to K and K is constant. This will become the first equation, and then along with it the final condition will be applied here with V2 over T2 is equals to K. Now on both sides you can observe that K is constant. So if the K is constant, what are we going to do? As both equations have same value of constant K, therefore their variables are also equal to each other. So little bit we can think about कि हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि K को हम हटा दें, K दोनों तरफ इक्वल हैं, लेकिन जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल नहीं हो सकती. अगर यहाँ V1 है तो यहाँ V2 है. हाँ, अगर आपकी एक तरफ V1 होती और दूसरी तरफ V1 होती तो ये कैंसिलेशन हो सकती थी. But here in this case, the final statement or equation of the Charles' law will become V1 over T1 is equals to V2 over T2. तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है चार्ल्स लॉ की, that is derived. Now we will explain the Charles' law by means of experimental verification. अब हम एक तजुर्बे की मदद से चार्ल्स लॉ साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो चार्ल्स ने स्टेटमेंट दी अबाउट कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे एक सिलेंडर और उसमें गिवन मास में जो गिवन मास ऑफ गैस होती है वो हम ले लेंगे और इसके साथ हम एडजस्ट करेंगे एक पिस्टन. तो ये हमारा इसके साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी पिस्टन की. तो सपोज़ कि ये आपने जो मैंने शेडेड एरिया दिखाया ये क्या है, ये पिस्टन है. तो इसको मैं लेबल भी कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, पिस्टन. और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो यहाँ मौजूद है. ये कुछ डॉट्स मैंने बनाए हैं जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रहे हैं. अब हम जब अपनी इनिशियल वैल्यू लेंगे तो वो होगी हमारी T1, दैट इज़ सपोज हमने ले लिया रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, एंड अलॉन्ग विद इट हम चूँकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का है, सो V1 विल बिकम, और हमने ले लिया 50 क्यूबिक सेंटीमीटर. क्लियर. अब हमने करना क्या है कि इसी सिलेंडर को एज इट इज़, किसी दूसरे सिलेंडर को नहीं लिया हमने, वही सिलेंडर हमने क्या किया, हम दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं और इस सिलेंडर को हमने कहाँ रख दिया, एक
स्टैंड के ऊपर रख दिया। हम छोटा सा स्टैंड बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने इसको कहाँ रखा है, स्टैंड के ऊपर रखा है। दूसरी साइड पे भी इसका एक स्टैंड बन जाता है। वैसे तो ये ट्राइपॉड स्टैंड के कहलाते हैं, लेकिन हम इसे फ़िलहाल सिंपल एक स्कीम के तहत बना रहे हैं। इसके नीचे हमने क्या रख दिया है, बंसन बर्नर। ये क्या है, हीटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला हमारा एक आला या हमारा एक हीटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम, यानी यहाँ मैं लिख देती हूँ बर्नर। अब इस बर्नर को हमने जला दिया है और इससे बाकायदा तौर पे फायर यानी हीट जो है बाकायदा पहुँच रही है सिलेंडर को। इससे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि हमारा फाइनल टेम्परेचर जो है वो, जो पहले 25 था, अब पहुँच गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और अब हम मालूम करने जा रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ा। तो वॉल्यूम हम जब देख रहे हैं, तो सिलेंडर की तरफ हम दोबारा वापस आएँ तो हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया है। ऐसा नहीं हुआ कि सिलेंडर का साइज़ बढ़ गया है, लेकिन ये कि पिस्टन मूव कर गया है। और पिस्टन के मूव करने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ इस वक्त नज़र आ रहे हैं, उनका बाकायदा तौर पर एरिया फैल गया है, एक्सपेंड हो गया है। जो कि यहाँ एरिया बहुत कम था, अब ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंड हो गया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम बढ़ चुका है। और ये वॉल्यूम अप टू कहाँ तक पहुँच गया है, 62.5 क्यूबिक सेंटीमीटर हो चुका है। So this relationship or this experiment finally proves that with the increase of temperature, volume will also be increased. If we will apply Charles' law in our daily life, then we can find different sort of examples. So here is one of the example which I am quoting and solving in front of you. अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, A sample of oxygen gas has a volume of 250 cubic centimeter at -30 degrees Celsius. If gas is allowed to expand up to 700 cubic centimeter at constant pressure, find out its final temperature. नॉर्मली द वैल्यूज़ जो कि यहाँ पर दी गई हैं, वो आपने सबसे पहले एक न्यूमेरिकल को देखते ही आपने ये गैस करना होता है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। अब जाहिर बात है, हमारी जो इक्वेशन है चार्ल्स लॉ की, उसमें हमने देखा कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, जहाँ पर प्रेशर आपने जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इसका हम जिक्र फ़िलहाल नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम की बात करेंगे और टेम्परेचर की बात करें। इससे पहले कि हम अपना डेटा सेट करें, हम पहले अपने क्वेश्चन के अंदर ही चेंजेस कर लेते हैं। जैसे 250 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो यूनिट आपको नज़र आ रहे हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला जो V1 है वो हमें पता चल गया क्वेश्चन से कि ये 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है। फिर हम आते हैं एट -30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि यहाँ पर यूनिट क्या है, ये टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमारे पास पहली वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर की आ गई T1, दैट इज़ -30 डिग्री सेल्सियस। Now if gas is allowed to expand up to 700 cubic centimeter, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम गैस को एक फैलाव के तहत लेकर जाएं, यानी गैस बाकायदा तौर पर फैलती चली जाए और उसका प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो 700 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच जाए, तो क्यूबिक सेंटीमीटर अब हमारा इंडिकेट कर रहा है V2, दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर। इसका मतलब है जो चीज़ अब हमारी रह गई है वही हमें मालूम करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना डेटा फिक्स करेंगे कि डेटा हम बनाएंगे। डेटा इज़ और गिवन इज़, पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है V1 इज इक्वल्स टू 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद हमें इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम चूँकि दोनों गिवन है तो हम लिख लेते हैं -30 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो की पॉइंट यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के हवाले से बताने वाली हूँ कि चार्ल्स लॉ में whenever the temperature is given to you in degrees Celsius, you have to convert that temperature in Kelvin.
ये याद रहेगी बात आपको कि जब भी अगर आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर देना पड़े तो आप कभी भी वो आंसर डिग्री सेल्सियस में नहीं देंगे बल्कि केल्विन में देंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि हम जो कि बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर का स्केल होता है या यूनिट होते हैं वो केल्विन स्केल कहलाते हैं, लिहाजा इसको हमने केल्विन स्केल में लाजमी कन्वर्ट करना है। सो द कन्वर्जन ऑफ द केल्विन स्केल हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला लगाएंगे K इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास डिग्री सेल्सियस मौजूद है, सो हम इसमें क्या करेंगे प्लस ऐड करेंगे अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज़ 273। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डिग्री सेल्सियस हमारे पास, हम यहाँ से लेंगे -30 प्लस 273। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 273 में से माइनस होकर 30 क्या बन जाएगी 243 और आंसर हमारा केल्विन में आ जाएगा। तो आफ्टर दिस कन्वर्जन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। विदाउट दिस कन्वर्जन आप अपने जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं कर सकते हैं। देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट वॉल्यूम जो कि हमारे पास दिया हुआ है V2 इज इक्वल्स टू 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट मीन्स अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है तो चौथी वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड बन जाएगा दैट इज़ T2 फाइनल टेम्परेचर इज़ अननोन टू अस। तो अब हम क्या करेंगे अपना वही चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे एंड वी विल स्टार्ट आवर कैलकुलेशन। सो calculation will be started and then we will write the next step for this. So by using the equation that is proposed or stated by Charles, V1 is equals to, पहले हम लिख लेते हैं complete, V1 over T1 is equals to V2 over T2। ये हमारी चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है जिसको हमने यहाँ अप्लाई करना है क्योंकि हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमने जब वैल्यू इसमें पुट की तो उससे पहले भी हम ये कर सकते हैं कि अपना जो रिक्वायर्ड हमारी चीज़ थी, जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी टेम्परेचर 2, वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ इसको चेंज कर देते हैं। हम कैसे चेंज करेंगे कि T2 की वैल्यू हमें इज इक्वल टू से पहले लानी है, तो T2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारा जो V2 है वो एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन जो कुछ और वैल्यूज़ हैं उसके साथ एडजस्ट हमने करनी है। जैसे ये T1 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिवाइड करके जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो V1 है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब बहुत ही आसान काम आपका ये हो गया कि बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन यू विल गेट योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड। तो हम अपनी वैल्यू अब पुट करने जा रहे हैं। T2 इज इक्वल्स टू हमारी V2 की वैल्यू थी 700 क्यूबिक सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे T1 से जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन किया था और हमारा रिजल्ट आया था 243। डिवाइड हम इसको करेंगे V1 से। V1 हमारे पास क्या आएगा या क्या दिया हुआ था 250 दिया हुआ था, और अब क्या करने जाएंगे 700 को पहले 243 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर आपने 250 से उस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो ये रिज़ल्ट कैलकुलेटर के यूज़ के साथ आपके पास आएगा 680.4 केल्विन। So finally we can say expansion is caused due to the increasing temperature। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन या गैस की एक्सपेंशन इसलिए हुई कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया था। तो दिस इज़ योर आंसर। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फार्मूला की कन्वर्जन में, फार्मूला की रीअरेंजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एग्ज़ाम्पल 5.4 की मैं एक हिंट आपको बता दूं जिससे पहले कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में प्रॉब्लम आ जाए। तो हम इसी 5.4 का फॉर्मूला से हमने आगाज़ करना है कि V1 over T1 इज़ इक्वल्स टू V2 over T2। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले तो T2 फाइंड आउट करना था, तो वो मैं आपको नेक्स्ट यानी इससे पहले बता चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट हमारा जो सीक्वेंस है कि हम ये कर लेते हैं कि V2 हमें मिसाल के तौर पे फाइंड आउट करना है। तो V2 इज़ अननोन इन
योर सेकेंड एग्जाम्पल 5.4। तो अब इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, किस तरह से फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपने V2 को लाना है V1 की पोजीशन पे। तो पहले आ गया आपका V2 और करके लिख दीजिए और लिखें V2। अब ये V2 जब यहाँ पर वैल्यू आई तो ऑब्वियसली इसके नीचे T1 नहीं लिखना है, तो फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। V2 इज इक्वल्स टू V1 को आप कहाँ लेके जाएंगे, जहाँ पहले V2 था तो ये आ गया V1। अब इन दोनों ने तो अपनी जगह रिप्लेस कर दी, एक दूसरे से अपनी जगह तब्दील कर ली, लेकिन T1 और T2 का क्या होगा। अब V2 क्या हो रहा है, T2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, ये आपने डिसाइड करना है। तो अगर V2 T2 से डिवाइड हो रहा था तो अब ये इससे, यानी जो भी वैल्यू इसके साथ आएगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई आपको। अब क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने वैल्यू शिफ्ट कर दी थी तो उससे पहले ये T1 ही रह गया था और T1 जो है वो क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पर आके अब ये T1 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये तरीका होगा आपका एग्जाम्पल 5.4 की जो फॉर्मूला रीअरेंजमेंट है उसको करने का। In the end of our lesson, you have to remember one thing. While doing your calculation, problems or numerical based on Charles' law, you have to convert, that is always convert temperature scale from degree Celsius to Kelvin, because in most of your problems or numericals, always temperature is given in degree Celsius. So you have to convert degree Celsius into Kelvin. बेटा आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप टेम्परेचर स्केल जो है वो जो भी आपको मेंशन होगा आपके न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपने उसको क्या करना है कि उसे लाजमी तौर पे केल्विन में चेंज कर देना है। इसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि अपने वो दो फार्मूला रिकॉल करें, वो दो फार्मूला याद करें जिसमें हमने क्या किया था, हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी चेंज किया था और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया था। फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर T गिवन है इन डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल इट इज -30 डिग्री सेल्सियस। Now, according to this temperature, you have to convert degree Celsius into Kelvin. अब आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपको ये पता हो कि केल्विन में आपने वो चेंज करना है और आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो आपने इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो इन दैट केस आप उसको प्लस नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूला के अंदर ऊपर जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कीजिए इस तरह से -30, यानी डिग्री सेल्सियस की जगह -30 लिख दें, प्लस 273 इसमें ऐड करना है ना। अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा आप क्या करते हैं कि जाहिर बात है आपका जो प्लस माइनस होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस माइनस के अकॉर्डिंग आपने ये मूव करना है, जिसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस की वैल्यू आपस में माइनस हो जाएगी। तो 3 में से आपने 0 निकाल दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए 3, 7 में से 3 माइनस किया 4 एंड रिमेनिंग नंबर हियर इज 2। सो बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आप लिखेंगे, तो लिहाजा प्लस है तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। सो व्हाट विल बी योर केल्विन टेम्परेचर, इट इज़ 243 Kelvin. So here you can convert your degree Celsius into Kelvin. So this is the end of today's lesson. I hope you have understood it and give me full response by writing the all long and short questions of this chapter, that is the topic related to gases. Allah Hafiz.